So hi everyone, how are you? I hope you guys are doing good. Preparation is going good and smooth. So in this particular video, we'll be discussing another 20 questions in this specific video, and those of you who might have attended or attempted these questions, आपको बस ये revision है. This video is not a long, not a very long video. It's a very short, concise, precise video. फटाफट हम 20 questions discuss करेंगे and we'll wrap up the session. So we'll start with question number 1. Which of the following is not true about the Chandrayaan 3? It was launched on board using launch vehicle Mark 3. The point where the Chandrayaan 3 lander touched down on the lunar surface has been named Shiv Shakti. India became the fourth country to land on the moon and first to land near the southern pole region of the moon. And option D, April 13th is observed as the International Space Day, commemorating the date in 1961 when Soviet cosmonaut Yuri Gagarin carried out the first ever human space flight. So these are the four options, and which of the following is not true about the Chandrayaan 3? So option 1 is absolutely correct. Chandrayaan 3 was launched using LVM Mark 3, and the point where Chandrayaan 3 landed on the lunar surface, it is named as Shiv Shakti point. And the most important thing about this entire question is that we became the fourth nation to land or to touch the surface, to land on the lunar surface, and we became the first country to land on the southern pole of the moon. So these three options are correct, and option D is actually the incorrect statement. And why option D is incorrect? Because जो इंटरनेशनल स्पेस डे है वो 13th अप्रैल की जगह 12th अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है. 12th अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल स्पेस डे. और क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1961 में 12th अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू गो और टू गो इनटू द स्पेस. तो इस वजह से हम लोग इंटरनेशनल स्पेस डे ऑब्जर्व करते हैं. याद रखिएगा 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 लैंड किया था सदर्न पोल ऑफ मून पे, इसीलिए 23rd of अगस्त विल बी ऑब्जर्व एज नेशनल स्पेस डे. 2024 में मेडन नेशनल स्पेस डे ऑब्जर्व किया गया और थीम था टचिंग द मून while touching the life India space saga. Now we have question number 2. The definition of scheduled caste is given in which of the following articles? So कौन सा आर्टिकल है बेसिकली जो आप लोगों को शेड्यूल्ड कास्ट का डेफिनेशन बताता है? वी हैव 4 ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ऑप्शन ए 366 क्लॉज 23, आर्टिकल 366 क्लॉज 24, ऑप्शन सी आर्टिकल 366 क्लॉज 25 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 366 क्लॉज 26. स्टूडेंट्स याद रखिएगा आर्टिकल 366 क्लॉज 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द टर्म शेड्यूल्ड कास्ट, whereas article 366 clause 25 of the Indian constitution defines the term scheduled tribe. So this is all about question number 2. Now with this information we'll move to question number 3. हम question number 3 पे move करेंगे. Now this is our question number 3. Which of the following has received the Global Water Tech Award 2024 in the organization category for its initiatives in environmental conservation? We have 4 options for this particular question. Delhi Metro Rail Corporation, Kolkata Metro Rail Corporation, Jaipur Metro Rail Corporation, Mumbai Metro Rail Corporation. So out of the given options, which of the following corporation or the company have received Global Tech Award 2024 in the organization category? So DMRC, that is Delhi Metro Rail Corporation को ये award मिला है. Now with this information we'll directly move to question number 4. Question number 4 हमारे लिए ये है, World Wide Web Day is observed every year on 1st of August. Tim Berners-Lee invented the www in which year? World Wide Web का इन्वेंशन टिम बर्नर्स-ली ने किस ईयर में किया था? याद रखिएगा 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन किया था, जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. नाउ विद दिस इन्फॉर्मेशन we'll move to the next question. And 1st August is observed as the World Wide Web Day. Now with this we'll move to the next important question. Which of the following is not a member of the Justice Hema Committee? So in recent time we have seen a lot about Justice Hema Committee. Justice Hema Committee is basically related to the मलयालम फिल्म इंडस्ट्री. मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वुमेन के लिए वर्किंग कंडीशंस और किस तरीके से कंड्यूसिव की जा सकती हैं, इस चीज़ के लिए केरला गवर्नमेंट ने 2017 में ये जस्टिस के हेमा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी. याद रखिएगा कमेटी ने रिपोर्ट अपनी 2019 में सबमिट की थी. कमेटी कॉन्स्टिट्यूट 2017 में की गई, 2019 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और 19 अगस्त 2024 को जस्टिस के हेमा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की. याद रखिएगा मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है. Justice Hema Committee was constituted in the year 2017 and it submitted its report in 2019. The report was made public by the government of Kerala. गवर्नमेंट ऑफ केरला ने रिपोर्ट को पब्लिक कब किया? 19 अगस्त 2024 को. आपसे सवाल में ये पूछा गया कि जस्टिस हेमा कमेटी के इनमें से कौन जस्टिस के हेमा कमेटी का
पार्ट नहीं था। याद रखिएगा 3 मेंबर कमेटी थी, जस्टिस के हेमा एज द chairperson of the committee. Then the 2 members were T Sharda and KB Valsala Kumari. So B Sharda was not the member of the Justice Hema committee. Instead of B Sharda, it was T Sharda who was the member of the Justice K Hema committee. Now with this information, we'll move to the next important question, that is question number 6. In which year the first ever summer Olympics took place and the venue was? याद रखिएगा पहला समर ओलंपिक्स हुआ था 1896 में, एथेंस में हुआ था फर्स्ट एडिशन ऑफ ओलंपिक्स। 2024 में 33rd एडिशन हुआ है ओलंपिक्स का पेरिस में, ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। Now I'll straight away move to question number 7. Which of the following Indian states does not share its border with Myanmar? कौन सा स्टेट म्यांमार के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता है? वी हैव 4 ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड द 4 ऑप्शंस आर अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर एंड नागालैंड। याद रखिएगा त्रिपुरा डज नॉट शेयर द बॉर्डर विद म्यांमार, त्रिपुरा बॉर्डर नहीं शेयर करता है म्यांमार के साथ में। कौन सी 4 इंडियन स्टेट्स हैं जो बॉर्डर एक्चुअली में शेयर करती हैं? वन वी हैव अरुणाचल, मणिपुर एंड नागालैंड, एंड द अनदर स्टेट दैट शेयर्स द बॉर्डर विद म्यांमार इज मिजोरम। याद रखिएगा टोटल 1643 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है इंडिया म्यांमार के साथ में। 3488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ में, और 4096.7 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है ये बांग्लादेश के साथ में। याद रखिएगा इंडिया सबसे ज़्यादा बॉर्डर अपना जो शेयर करता है इंटरनेशनल बॉर्डर, वी शेयर इट विद बांग्लादेश। नाउ विद दिस इन्फॉर्मेशन विल डायरेक्टली मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम मूव कर रहे हैं। Who is the current chairperson of the National Commissions for the SC? श्री किशोर कुमार मकवाना, श्री लव कुश कुमार, श्री सुभाष रामनाथ और श्रीमती अंजू बाला। याद रखिएगा श्री किशोर कुमार मकवाना इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशंस फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. Who was the last king of the Jammu and Kashmir? Raja Hari Singh, Raja Ranveer Singh, Raja Harihar Nath, and none of the above. Who was the last king of Jammu and Kashmir? याद रखिएगा last king of Jammu and Kashmir was Raja Hari Singh. Raja Hari Singh थे last king Jammu and Kashmir के, और कब से कब तक ये king थे जम्मू एंड कश्मीर के? तो डेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 23 सितंबर 1925 से लेकर के 17 नवंबर 1952 तक राजा हरी सिंह वॉज द किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नाउ विद दिस इन्फॉर्मेशन विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 10. हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली डायनेस्टी? दिल्ली डायनेस्टी के लास्ट किंग का नाम क्या था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर खान, आरम शाह, अलाउद्दीन मसूद। याद रखिएगा लास्ट किंग ऑफ दिल्ली डायनेस्टी वॉज इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी लास्ट रूलर थे। मुगल एम्परर थे बाबर, जिन्होंने फर्स्ट बैटल हुआ था। Here you can see it. It's given in the answers part. First battle of पानीपत 1526. तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 में हुआ था, इसी में बाबर ने हराया था इब्राहिम लोधी को। एंड विद दिस पर्टिकुलर डिफीट द रीन ऑफ मुगल द रीन ऑफ दिल्ली डायनेस्टी कम्स टू एन एंड, और फिर इसी के साथ में मुगल रूल जो था वो स्टार्ट हो जाता है। सो इन 1526 ड्यूरिंग द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोधी द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली डायनेस्टी वॉज डिफीटेड बाय बाबर, और इसी के साथ में दिल्ली डायनेस्टी का जो खात्मा था वो शुरू हो गया था। नाउ विद दिस इन्फॉर्मेशन विल मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. विच रिवर डिवाइड सिक्किम फ्रॉम बांग्लादेश? रंगीत, पोहनरी, तीस्ता और जमुना। याद रखिएगा तीस्ता रिवर जो है वो सिक्किम और बांग्लादेश को डिवाइड करती है, नेचुरल बॉर्डर की तरह काम करती है तीस्ता रिवर, एंड इट डिवाइड सिक्किम फ्रॉम बांग्लादेश। नाउ विद दिस क्वेश्चन विल मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 पे हम मूव करेंगे। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1945, 1946, 1947, 1948। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? सो याद रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो एस्टैब्लिशमेंट है दैट टुक प्लेस इन द ईयर 1948. एंड व्हाई 1948? बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज इन्फोर्स्ड ऑन 7th of April 1948। 7th अप्रैल 1948 को जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे इन्फोर्स किया गया था। दैट्स वाई वी सेलिब्रेट और we believe this that the World Health Organization was established in 1948. Now with this information we'll move to the next important question, and that is question number 13. Which of the following is a joint military exercise between India and Sri Lanka? Exercise वज्र प्रहार, exercise मित्र शक्ति, exercise मैत्री and exercise खंजर। याद रखिएगा इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो joint military exercise हुई है इसका नाम है exercise मित्र शक्ति। exercise मित्र शक्ति joint military exercise है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। Now with this information we'll move to question number 14. Who is the first woman to be appointed as the Director General of मेडिकल सर्विसेज आर्मी? याद रखिएगा साधना सक्सेना नायर। ऑप्शन बी साधना सक्सेना नायर is has been appointed and she became the first woman to be appointed as the Director General of Medical Services Army. So this is exactly your question number 14. Sadhana Saxena has been appointed as the Director General of the Medical Services Army. Now with this information we'll directly move to question number 15. Question number 15 पे हम move करेंगे। Now this is your question number 15. Where was the 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 held? न्यू दिल्ली, गुरुग्राम,
पटना भोपाल, याद रखिएगा। जो ये 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन हुआ है, ये हुआ था आपका भोपाल में, इस चीज़ को आप प्लीज़ याद रखिएगा। और इसी के साथ हम मूव करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम फटाफट मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16। Indian astronauts group captain Subhanshu Shukla and group captain Prashant Balakrishnan Nair have been shortlisted for the upcoming Axiom 4 mission, and Axiom 4 mission is related to। तो Axiom 4 mission जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक कंपनी है Axiom जो भेज रही है, और इसमें 2 इंडियन कॉस्मोनॉट को सिलेक्ट किया गया था। बेसिकली जो प्राइमरली सिलेक्ट किया गया वो ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला को सिलेक्ट किया गया, और इनके बैकअप पायलट के तौर पर गए हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर। सो आपको ये बताना कि जो एग्जाम 4 मिशन जिसके लिए ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला को सिलेक्ट किया गया, ये मिशन कहाँ पर जाएगा? तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये मिशन जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दैट इज ISS को जाएगा ये मिशन। नाउ विद दिस इन्फॉर्मेशन विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हम मूव करेंगे, हु वन द गोल्ड मेडल इन मेंस सिंगल्स टेनिस एट द 2024 पेरिस ओलंपिक्स। टेनिस, लॉन टेनिस में 2024 पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल किसको मिला है? जैनिक सिनर, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज एंड मैथ्यू एब्डन। याद रखिएगा 2024 33rd और समर ओलंपिक्स जो पेरिस में अभी कंक्लूड हुए, वहाँ पर नोवाक जोकोविच ने मेंस सिंगल्स टूर्नामेंट जो था लॉन टेनिस का वो जीता है। एंड इसी के साथ इन्होंने अपना करियर स्लैम भी कंप्लीट किया ना। व्हाट इज करियर स्लैम? जब आप चारों मेजर जो टूर्नामेंट्स होते हैं लॉन टेनिस से रिलेटेड, दैट इज विंबलडन, US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड फ्रेंच ओपन, वो चारों जीत लेते हैं, और इसी के साथ में जब आप ओलंपिक गोल्ड जीत लेते हैं तो आपका करियर स्लैम कंप्लीट हो जाता है। तो इसी के साथ में नोवाक जोकोविच का भी जो करियर स्लैम था वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। Mpox was first identified. Mpox was first identified, and when outbreak occurred to monkey colonies kept for the research purposes। तो पहली बार मंकी पॉक्स जैसे वायरस को कब आइडेंटिफाई किया गया था? वी हैव 4 ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, 1955, 56, 57 एंड 58। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मंकी पॉक्स जो वायरस था वो पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था इन द ईयर 1958, और पहली बार जो इसका ह्यूमन ट्रांसमिटेड केस मिला था वो 1970 में मिला था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रमन मैग्सेसे अवार्ड? वी हैव 4 ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर एंड आचार्य विनोबा भावे। सो आचार्य विनोबा भावे वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट रमन मैग्सेसे अवार्ड। कम्युनिटी लीडरशिप कैटेगरी में 1958 में इन्हें अवार्ड मिला था। नाउ विद दिस इन्फॉर्मेशन विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। लास्ट क्वेश्चन पे मूव करना है, एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 20। Lakshya Sen made history by becoming the first male Indian shuttler to qualify for the semi-finals of an Olympics. He achieved this milestone by defeating with a score of 19-21, 21-15, 21-12 in the quarterfinals of the 2024 Paris Olympics। तो आपसे बस ये पूछा जा रहा है कि लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल्स में किसको हराया, और ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द सेमीज इन द सिंगल्स ऑफ द बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन में सिंगल्स जो टूर्नामेंट होता है उसमें क्वालिफाई करने वाले सेमीज के लिए पहले इंडियन बने थे, और लक्ष्य सेन ने हराया किसको था? तो लक्ष्य सेन ने हराया था, प्लेयर का नाम है चाओ टियन चेन। चाओ टियन चेन को इन्होंने क्वार्टर फाइनल्स में हराया था, एंड विद दिस डिफीट एंड विद दिस विन एक्चुअली लक्ष्य सेन बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द सेमीज ऑफ द सिंगल्स ऑफ द बैडमिंटन इन द ओलंपिक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। एक्सक्यूज मी, दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपका कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत होती है तो प्लीज़ एक्सेस ट्राई टू रीच आउट टू अस, एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। अगर आपकी कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा हम लोग बैठे हैं। ऑन दैट नोट विल रैप अप टुडे सेशन। थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो देख चुके हैं दैट्स वंडरफुल। अगर आप ने ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वंडरफुल। 30 मिनट्स लगे और आपके 20 क्वेश्चन रिवाइज होगा। ऑन दैट नोट विल रैप अप टुडे सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।